I'm Dipti Dikuna, the artistic director of Mami Mumbai Film Festival. Today we are having our second memorial lecture in honor of Mr. Sudhir Nandgaonkar, who was the founding member of Mami. And this lecture actually was the brainchild of Mr. Ashok Rane, who has been very kind to have, informed new managements about how the early years of Mami was. We have inherited Mami festival. Last year I had mentioned this, but I will say it again, that my interest in film festivals, of course, started by attending Mami as a student in college when we had, the screenings at YB Chauhan or, other places. And at that time, just like any 17, 18-year-old, we didn't know what a film festival was. We just knew we were going to see something new, especially in an age where there was no access to so many films. We either depended on Doordarshan or, waited for the late night show. And suddenly there were all these films coming in, shown on print, I remember, from the archives. And they were introduction to great classics, but we didn't have any internet to check who this director was, what this film is about. So it was one of the most purest experiences of cinema, because you were watching Kurosawa without knowing who is Kurosawa, and you were just absorbing the film for what it was, or you were watching a Misoguchi, or you were watching a Hu Shaoxian. And then you were, getting in cinema history. Like today, our foundation and knowledge is because of that. And I'm one of those who really got bitten by the festival bug and then decided that this is what I wanted to do. So it's really the passion of people like Mr. Sudhir Nandgaonkar, Mr. Kiran Shantaram, all the founding members, deciding, coming from the Film Society movement, who realized what cinema can give to generations. And the only way to give it to generations is to create an institution like Mami. And Mami has exchanged many hands. It's had its up and downs. Last year, we were having this lecture in a very plush setting. This year, it is a smaller setting. But, the passion of Mr. Sudhir Nandgaonkar and the founding team, and, always inspires all of us, because no matter how difficult our times are, it would never have been as difficult as it was then. Organizing it in every aspect. We don't have to go and get film prints. We do everything on email. We are not writing letters. We are not, when we ask for money, we are not collecting cash at the end of the day. So, those decisions and foundations that were laid, and also the responsibility of the legacy has to be carried on, and that can happen only if you have a sense of history, which is why it's so beautiful that today our lecture also connects with history. It connects with history and cinema, and we are going to have an historical overview today of what we experience as our cinema, a special cinema of India which incorporates, songs and lyrics. And I think this is so unique to what we experience here, and it's going to be a very enjoyable and memorable lecture. And I would let Mr. Ashok Rane say something more about it. But before that, I would like to invite Mr. Ashok Rane to say a few words about Mr. Sudhir Nandgaonkar, who's so dear to him, dear to all of us. And I would also like to thank him for giving us an opportunity and making us understand the importance of, how Mami started and why we should make sure that it continues. Thank you. Thank you, Dipti. Good morning and welcome all to this special session of Memorial Lecture of Sudhir Nandgaonkar. First thing I would like to tell about the Mami Festival and Dipti. Last year, Mr. Nandgaonkar passed away in Jan 23. And then in October, September, July, October, the festival preparation was started, and I just called her and I suggested we should have something in the memory of Mr. Sudhir Nandgaonkar, who is the father of this festival. He started this festival. I have been associated with Nandgaonkar since 76. And he used to tell me those days, ki Ashok, every city in the world, they have their own festival, London Festival, Moscow Festival, Berlin Festival. And Mumbai being the capital of the Indian film industry, there is no festival.
So we should have our own festival. He was very passionate about it. He started Prabhat Chitramandal, the first person in Marathi, because in those days, there was only couple of film societies in Mumbai, and one of the industry people, Film Forum, and another this thing. So there was no film festival for the Marathi people. He wanted in Maharashtra, Marathi, we have literature, very strong literature, we have very strong theatre movement. So we should have our own film society also. So he started Prabhat Chitramandal in 1966. And that's how the whole thing started. And one after another, once he started festival, then some magazines, some activity, one after another he started. And then then after some years, he used to tell all of us, the Mumbai should have its own festival. And he was after organizing whole thing, he started collecting people around him and talking to everybody. And the money was a big problem every time. Now money problem there in Mavi also this year. So, but he was very enthusiastic, very hopeful, and he started gathering. First thing, whenever he does, he will find a name for the organization. And the Mumbai Academy of Moving Images, the correct name, and the shorter version is MAMI. MAMI is very close to me, like Marathi, but MAMI, हम सब जानते हैं MAMI क्या होती है, तो MAMI करके एक intimate relationship with that festival he's created. And then he started gathering people from the industry. And then he approached Rishikesh Mukherjee as a chairperson, and then many others were together. And then for some reason, Rishida said, because some sponsorship issue was there, now I can tell you no problem, because when we started this creating MAMI, some people started coming close to us, कि भाई we have हम ऐसा help करेंगे, वैसा help करेंगे, and somebody approached with the sponsorship, and those sponsorship were of some booze company and cigarette company, and Rushida said, अगर आप इनसे पैसे लेते तो I am not a chairperson. So then he said, no, and he didn't cut it. Then after some time, they also went. We brought money from some other source. Then by that time, Shyam Benegal took over, and Shyam Benegal was the chairperson from the beginning. So this is how he started. And then I remember in MIF festival party, and me and he was there in a party, and he was looking at one person constantly, watching him, and then he was little getting nervous. And then I said, "Ki why? What happened?" So he said, "I want to talk to this man." So what's the problem? So he's always surrounded by some people. I want him to talk to him alone. So everybody used to come, and finally at one point he was alone, and he really rushed to him, and he introduced himself. I was with him, and that fellow was the president of FIAF. The FIAF is the organization, world organization of all the festivals. So he was there, so he wanted to ask him how to start film festival, how FIAF is going to help. Film festival yet to open, yet to start. So this is Nangaonkar. And then he approached him, and we were talking about him. And then I can tell so many things about him. He was a very passionate. Sometimes he was giving some problem to all of us also. He gave me so much trouble to me also, but despite that, I love him and respect him like anything. Because his passion. Because his passion. As Dipti last also, Dipti said, I was really impressed with the way she said, there are many people here, many people. Now they're watching films there, now younger ones and the elder people also. We got to see films, world cinema in large number because of MAMI. There were some people, they were member of the Film Society, but MAMI was a great opportunity for all of us, all Mumbaikars. At one place you got to see, and then many people used to come. We invited Istvan Zabo. He was here 3 days. I was attending Istvan Zabo. It was a great experience for me. So many people came, different part of the world, films and all that. So many seminar, and just now I was telling my friend on the way here that once he invited 7 women directors from Iran. And then I was with him like a younger brother. So suddenly he was getting nervous and said, again, what happened? So he said somebody was to take their interview and she's not making. She said she's held up somewhere in traffic jam. So now you start. So without preparation, then I sat together. I don't know their names also. Only 2 or 3 I was knowing. I didn't know. But then he said, no, chalo, tu shuru kar. And then I started. But then he was like that. Anyway,
So Sudhir was the great, and then when now I'm doing a documentary on the Film Society movement after 75 years of Film Society movement, and we are all I'm missing for Sudhir. Sudhir won't be there in the film. So from somewhere I've got some footage, but something about naturally he'll always speak about the films and movement and all that. That is about Film Society movement only. But I wanted to have his interview in the film, but he's not there in the thing. Anyway. So thank you, Dipti, and thank you, Mami, for organizing this festival. And then I would love to invite Mr. Swanand Kirkire, our today's guest. Please. So first of all, I would like to thank Swanand on behalf of the Mami Festival, Dipti and myself, that he accepted our invitation to deliver a lecture. But then we'll little change in the program that instead of he delivering the lecture, we are going to do chat over this topic, the lyrics of the past and present. So we made this little change, and then it's all informal. It's all informal. There is nothing formal like that. So we are going to start it. But before that, I would like to introduce the daughter-in-law of Nangaonkar Anjali and the grandson of Nangaonkar Ahan, and the youngest son, Sunil. So they are the family members of Sudhir, but they are also family members of the Film Society movement in Prabhat. The morning he gets up and late night he goes to sleep, they are in the Film Society movement. Everybody is listening same story. Yala phone kar, tala phone kar, chashi bol, and the entire family is like the whole family is like a Film Society movement family. So they are here. You want to say something about it? Yeah. Okay. Chalo, thank you. Other day I read somewhere that in this kind of a program, the guy who is going to take interview, he always say, the guest here doesn't need any introduction, and then he goes on giving information about the man. So I'm not going to do that because we all know Swanand very well. But just will be little formality. Introduction देना पड़ा. फिर भी little formality I have to do because certain thing I myself know. I don't think everybody, some of you may be knowing that. He's from Indore. He's from Indore, and in Marathi culture, in all Maharashtrians, they are outside Maharashtra in Bangalore, Calcutta, Hyderabad. The many Baroda is one city, large population there in Baroda also. But the people from Indore, we can call it as a typical, very difficult, Rasik Gharana. All musicians and great people are there who appreciate music and all that. His own parents are classical singers, and also he also used to sing classical, but he didn't get training like that. No. Never sung classical. Never sung. Okay. So. But then, like any middle-class family, he was also made to go to commerce side and complete his degree in BCom. So he's a BCom and nothing to do with his degree with what he's doing today. But then I'm also curious about that also, that our topic is different, but I'm curious about that, why he was pushed to that BCom degree and how he accepted or whatever happened. I just want to know about that also. And then from there, he completed his degree in BCom, then he went to Delhi, and he joined NSD. And after NSD, he was doing theater there. And then naturally, everybody has to come to Mumbai. He came. And from Hazare Khwaishe Aisi, Bawaraman, that is his starting point. And from there, he started as a lyric and all that. And then so many of Parinati and Piu Bole, Pal Pal Pal, वगैरह बहुत सारे वगैरह so many because I wanted no don't read everything because I don't want to read that. No, we are going to talk about the history of but I just mentioned little bit thing about this. Two national award, one for Lagero Munnabai, Bande Mein Tha Dam, and then Beheti Hawa Sa Tha, usko mila na. And then again यही थे जूरी में भूल जाते. And the best supporting actor for Chumbak Marathi film, and that time everybody can even state also he got there also. I was jury, and then so you know why I'm here. Yeah. So this is Swanand,
And then our today's topic. So should we start about that become yeah, wala thing pehle? नहीं, but we'll start. But first and foremost, there is one lesson कि अगर किसी चीज का क्रेडिबिलिटी आपको पता है कि मामी है, तो वहां पे लेक्चर देने बुलाया तो एकदम से हाँ नहीं बोलना होता है, क्योंकि मैंने परसों सब्जेक्ट देखा कि व्हाट एम आई गोइंग टू स्पीक अबाउट, एंड देन आई रियलाइज कि वो इतना मैमोथ इसका इसका इतना वास्ट ये है कि मैं उस तरह से स्टडीड, उस तरह से पढ़ा लिखा नहीं हूँ कि मैं इतने बड़े सब्जेक्ट पे बोल सकता हूँ. तो वॉट एवर आई एम गोइंग टू स्पीक इज फ्रॉम लिटिल बिट ऑफ फ्रॉम माई अंडरस्टैंडिंग, हाउ आई अंडरस्टूड इट. उसमें गलती हो सकती है, उसमें एक कोई बायस हो सकता है, उसमें कोई चीज़ हो सकती है, तो प्लीज़ संभाल लीजिएगा और मुझे करेक्ट कर दीजिएगा अगर ऐसा हुआ तो. एक और चीज़ मैं शुरू करना चाहता हूँ, क्योंकि हम लिरिक्स के बारे में बात करने वाले हैं प्राइमरीली, क्योंकि मैं लिरिक राइटर हूँ. तो yesterday we lost a lyric writer, Mangesh Kulkarni. Mangesh Kulkarni wrote many lyrics for different Marathi things, but हिंदी सिनेमा में उसने 2 गाने लिखे हैं, और वो 2 गाने इतने बढ़िया है. प्रहार फिल्म के धड़कन जरा रुक गई है, और दूसरा हमारी ही मुट्ठी में आकाश सारा, जब भी खुलेगी तो चमकेगा तारा. तो let's start by remembering Mangesh, and from there we'll start, sir. So I'll just read these lines. हथेली पे रेखाएं सब है अधूरी, किसने लिखी है नहीं जानना है, सुलझाने इनको ना आएगा कोई, समझना है उनको ये अपना कर्म है, अपने कर्म से दिखाना है सबको, खुद ही पनपना उबरना है खुद को, हमारी ही मुट्ठी में आकाश सारा, जब भी खुलेगी तो चमकेगा तारा, दिशा जिसको दिखलाए संसार सारा, हमारी ही मुट्ठी में आकाश सारा. तो दिस इज फॉर मंगेश. The other thing which he asked was that how did I go to BCom, because really I don't know, because I didn't know that I come from a म्यूजिक फैमिली. पर उतना मालूम नहीं था कि मेरे को म्यूजिक आता है. मेरे को कभी गाने नहीं दिया घर में, मेरे फादर मेरे को चुप कर देते थे, चिल्लाओ मत बोलते थे, मैं गाता था तो. और दूसरा ये कि कुछ तो करना था इंदौर जैसे शहर से, आज जितना आसान नहीं है, तो इट्स नॉट दैट इजी. समथिंग हैड, कुछ तो करना था, तो बीकॉम कर लिया. मैं एनएसडी में, मेरी रैगिंग में मेरे से पूछते थे कि तुमने बीकॉम क्यों किया, तो मैं कहता था कि क्योंकि बीए बहुत छोटा है और बीएससी बहुत बड़ा है. तो वो पूछते थे कितना बड़ा है, तो मैं कहता था बीए इतना, बीकॉम इतना और बीएससी इतना. तो हमारी पूरी क्लास ऐसे इंट्रोडक्शन देती थी, तो बोलते थे इंट्रोडक्शन एक साथ, तो सारे ऐसे 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 खड़े हुए. किसी ने कुछ किया. तो एनीवे, विल स्टार्ट सर, विल कम बैक टू लिरिक्स. So, as you know, the subject is the lyrics of past and the present. A very vast subject, I know that. And he told me that I'm little nervous. Even I'm little nervous because just day before he told me that he's not going to deliver lecture. You are going to sit next to me, और हम लोग बातें करेंगे. You ask me questions. For that, I have to do some homework. But last 3 days, I am playing a role of grandfather. All my grandkids are at home. So I'm finding very little time to do, and many other things I'm doing at a time. So थोड़ा सा तो homework इधर है, तो हम लोग will start. So I'll start to begin the whole session with this, कि जब हमारे यहाँ फिल्में आई, फिल्म आई और हमने फिल्म बनानी शुरू कर दी, तो immediately our cinema accepted the form of the theatre, which was very at the peak those days. Marathi theatre, Parsi theatre, Gujarati theatre. रात को 9 बजे प्ले शुरू होता, सुबह 6 बजे तक चलता था, और उनमें बहुत सारे गाने होते थे. मराठी में उसको पद बोलते. तो उसमें बहुत सारे सिंगिंग होता था, वो क्लासिकल सिंगिंग होता था, और गाना चलता है, और हम दोनों कैरेक्टर मैंने इन्होंने गा लिया, तो इनका गाना लोगों को लोग वंसुण देते, मैं खड़ा हूँ बाद में बाजू में, कुछ करना नहीं है मुझे. So those kind of things very popular. The cinema immediately taken that form from the theatre. The format पूरा theatre का था. फिर बाद में जैसे in the beginning there was the silent era. Then talkie era started in 1931 in India with Alamara, and there were many songs. And that one Mr. Khan,
who sang one song called "De De Khuda Ke Naam Gar Taakat Hai Dene Ki." That was a hugely popular in those days in all over India, up to Rangoon and all that. And before that, the first talkie started in made in Hollywood, uh, jazz singer. So because in the beginning there was no writers to write the script, dialogue and all that. So they thought the hero should be, the protagonist should be a singer, so things will be easy. So jazz singer was a hero in that first film, and he went on singing and singing. Then 31, and then 32 Marathi cinema, Ajaysa Raja. Then we have songs here. So very first film, all films are loaded with these songs and dance format. And the next year, the film was Indra Sabha, which was made in 1932. The film had 72 songs in one film. 72 songs. So that was the popularity of this format. So how you will react to that? So, sir, नहीं, very rightly said. तो let's understand, क्यों हम ये समझते हैं कि हिंदी सिनेमा में गाने हमने थिएटर से लिए, लेकिन थिएटर में गाने कहाँ से आए? तो हम अगर इस पूरी की पूरी प्रक्रिया को समझने की कोशिश करें कि व्हाट इज पोएट्री, तो अगर आप इंसान के सबसे पहले कम्युनिकेशंस की तरफ देखें, अगर आप वेदों की तरफ देखें, अगर आप कुरान को पढ़ें तो उसमें आयतें हैं, अगर बाइबल है तो उसमें हिंस है, तो सब जगह पे पोइट्री का इस्तेमाल है। तो बिना पोइट्री, मतलब जब भी किसी को कोई चीज किसी के दिमाग पे छापनी हो तो यूज पोइट्री। दैट्स, जब भी अभी भी आप एडवर्टाइजिंग में देखते हैं, हम कहीं पे भी देखते हैं, तो कोई भी चीज जब राइम में बोली जाती है तो जल्दी जल्दी लोगों के दिमाग में वो आती है। रामायण, महाभारत, ये भी हम उनको महाकाव्य बोलते हैं यार। तो वो काव्य है, एक पर्टिकुलर छंद में पूरी चीजें लिखी गई है। अनुष्टुप छंद में रामायण पूरा का पूरा वाल्मीकि ने लिखा हुआ है, अनुष्टुप छंद में ही गीता लिखी हुई है, अनुष्टुप छंद में ही। उसी तरह से अगर हम आगे चले, मतलब हम वेदों की तरफ देखें तो वेदों में भी यही बात है। ठीक है, उससे भी आगे आते हैं हम, आते आते अगर हम कालिदास की तरफ आए, अगर हम बाकी के संस्कृत नाटकों की तरफ आए, तो आपको पता चलेगा कि उसमें भी पूरा का पूरा जो ये सारे के सारे काव्य है। उसके बाद अगर हम वेस्ट में जाए, अगर हम ग्रीक ट्रेजेडी को देखें तो ग्रीक ट्रेजेडी में बहुत सारा काव्य है। अगर हम शेक्सपियर की तरफ जाए तो पूरा एक मीटर है जिसमें शेक्सपियर लिखता है। तो wherever storytelling was happening, songs were not alien to that. Without songs, no story was told. You know, हमारे क्लासिकल फॉर्म्स की तरफ अगर हम देखें, भरतनाट्यम की तरफ देखें या कुडियट्टम की तरफ देखें, जो संस्कृत नाटक का सबसे क्लोजेस्ट फॉर्म है, एवरीथिंग इज डांस एंड ड्रामा एंड सॉन्ग्स, एंड सॉन्ग्स मेक एन इम्पैक्ट दैट्स लाइक उसका एक पूरा का पूरा हमको ये बात समझ में आती है। जैसे बिकॉज पैटर्न मेक्स एन इम्पैक्ट, नो, दैट्स हाउ आई अंडरस्टैंड इट। जैसे अगर हम कहें कि फर्स्ट टाइम कोई चीज आदमी करता है तो वो एक्सीडेंट हो सकती है, सेकेंड टाइम कोई चीज करता है तो कोइंसिडेंस हो सकती है, थर्ड टाइम उसी चीज को जब वो करता है तो आर्ट हो जाती है। तो जिसका मैं एग्जांपल अगर आपको दूं तो उसका सिंपल एग्जांपल ये है कि अगर आप तबले की तिहाई देखें, दिखता तिरकट तिरकट धा तिरकट तिरकट धा तिरकट तिरकट धा। अब ये 2 बार करेंगे तो कुछ नहीं होगा, 1 बार करेंगे तो कुछ नहीं होगा, तीसरी बार होगा तो आप कहेंगे कि हाँ यार ये ही इज अ मास्टर ऑफ डूइंग द सेम थिंग अगेन। First time is just noise, you know. Second time when you repeat that noise, even a सा रे ग म प ध नि सा, वो सिर्फ नॉइज है, लेकिन जब 4 लोग मिलके उसी फ्रीक्वेंसी को रिपीट करते हैं तब वो जाके म्यूजिक बनता है। तो that's how I looked at, that's how I think we should understand lyrics। तो अब मुझे लगता है कि लिरिक राइटर का काम बहुत छोटा हो गया है। जब कालिदास तो पूरा ही लिरिक्स लिखता था, वहां पे प्रोज राइटर कोई मतलब तो कोई था ही नहीं। तो हमारा काम उस तरह से अब बहुत छोटा हो गया है, 1-2 गाने में निपट जाता है काम। बाकी क्योंकि जैसे जैसे रियलिज्म आता गया, जैसे जैसे चीजें बदलती गई, हम क्लोजेस्ट टू लाइफ आते चले गए, हमारा आर्ट क्लोजेस्ट टू लाइफ आता चला गया। फिर आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो फिर पारसी थिएटर में आप देखो तो वो शेक्सपियरियन थिएटर की थोड़ी सी कॉपीज थी, उसके वहाँ से कुछ उन्होंने उठाया था। मराठी थिएटर को अगर हम देखें तो उसमें भी म्यूजिक की जगह थी, क्लासिकल म्यूजिक की जगह थी, एंड उसमें, और वहाँ से आते हम जब हिंदी सिनेमा टॉकीज बना और बोलने लगा हिंदी सिनेमा जिस दिन से,
उस दिन से वो गाने लगा और ऐसा गा रहा है कि आज तक गा रहा है आज तक गाना उसका रुका नहीं है। तो एक ऐड करना चाहूँगा, जैसे आपने बोला ये सब ठीक है, इसमें और एक हम लोग ऐड कर सकते हैं कि हमारी फिल्मों में गाना है, क्योंकि हमारी संस्कृति में गाना है। बिल्कुल। हमारे जो भी शादी है, दिवाली है, यहाँ तक कि somebody is dead, तो उसमें भी बिल्कुल, सब बिल्कुल, जितने बिल्कुल, हर जगह गाने ही है। हम बिना गाने के जी नहीं सकते। हम एज ए सोसाइटी हम बिना गाने के जी नहीं सकते। तो इसीलिए हमारे सिनेमा में गाना है और इसीलिए हमारा सिनेमा इतना इंडिजीनियस, मतलब इतना अलग तरह से म्यूजिकल सिनेमा बना है, जो कहीं पे भी वर्ल्ड में, आपने भी कहा कि कहीं पे भी वर्ल्ड में इस तरह का कोई फॉर्म नहीं है। म्यूजिकल, वेस्टर्न सिनेमा में या थिएटर में म्यूजिकल्स एक अलग जॉनर रहा है, लेकिन हमारा म्यूजिकल उस जॉनर से बहुत अलग है। हमारा रियलिज्म से अलग अलग हो जाके हमारा म्यूजिक बनता है, हमारा हमारा लिरिक्स बनता है। तो खैर, तो हम शुरू करते हैं। फिर मैंने एक हमारी हिस्ट्री को ना एक 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 पर्सपेक्टिव में देखने की कोशिश की है, हिंदी सिनेमा के लिरिक्स को, और मैंने इसको हिंदी सिनेमा के चेंजिंग पैटर्न्स के साथ में देखने की कोशिश की है। तो आई होप कि हम कोई जैसे मैं एक एक दो लाइनें बोलता हूं आपको। कोई काम नहीं है मुश्किल जब किया इरादा पक्का, मैं हूं आदमी सड़क का। ये दो लाइनें हैं। कोई काम नहीं है मुश्किल जब किया इरादा पक्का, मैं हूं आदमी सड़क का। क्या आपको इसमें कुछ सेंस लगता है इस राइमिंग में? अगर लगता है तो क्या लगता है? दरअसल हुआ यूं कि कल मेरे एक लिरिसिस्ट दोस्त का मेरे को मैसेज आया कि यार ये इन लाइंस का कोई सेंस नहीं बन रहा है, ये क्यों मुखड़ा बना? किसी को बना सेंस किसी के दिमाग में? No, that's a technical thing, but that's also the राइम में थोड़ा गड़बड़ है उसके, लेकिन उसके अलावा फिल्म का टाइटल भी है, लेकिन फिल्म का टाइटल भी है आदमी सड़क का ही गाना ही है। करेक्ट। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आदमी सड़क का जो है वो इतना पक्के इरादे का होता है कि जब वो कुछ करता है तो वो आगे बढ़ता है। लेकिन हमारी पूरी इस जनरेशन को ये बात समझ में नहीं है कि आदमी सड़क का इतना क्यों स्ट्रांग होता है। तो एक समय था जब आदमी सड़क का आदमी हीरो था, हम उसकी बात करते थे। तो उस जर्नी को, तो फिर मैंने वहां से चीजों को देखना शुरू किया, मैंने वहां से चीजों को समझना शुरू किया कि हिंदी सिनेमा की जर्नी कैसे चली, और कैसे कैसे जैसे जैसे पॉलिटिकल चेंजेस कंट्री में होते चले गए, जैसे जैसी चीजें बदलती चली गई, हिंदी सिनेमा कैसे कैसे बदलता चला गया और उसके अनुसार गाने कैसे बदलते चले गए। तो आपने जब बताया, हमारा सिनेमा कभी बहुत रेबेल का सिनेमा नहीं रहा है, थोड़ा बहुत करता है, पर हमारा सिनेमा जनरली जो, हाँ, एंटरटेनमेंट है और जो चल रहा है उसके साथ हाथ मिला के चलने की कोशिश करता है, क्योंकि सिनेमा इज अ बिजनेस। तो बिजनेस तो वही चलता है जो पब्लिक का सेंटिमेंट होगा उसके साथ जो जाता है वो बिजनेस होता है। तो बिजनेस इसीलिए वो हमेशा थोड़े से पब्लिक सेंटिमेंट के साथ चलने वाला होता है। लेकिन अगर हम बिल्कुल बिगिनिंग, ये मैं सब लिख लिख के लाया हूं, तो मैं कभी ऐसा कंफ्यूज हो जाऊं तो प्लीज। हाँ, तो जैसे आपने बताया कि प्री इंडिपेंडेंस जब हम बात कर रहे थे सिनेमा के बारे में, तब तो बहुत सारी चीजें, इंद्र सभा हुई या आलम आरा हुई या इस तरह की चीजें हुई। पोस्ट इंडिपेंडेंस या इंडिपेंडेंस के समय से जो एक नेशनलिज्म का भाव आया, एक चीजें आई, जैसे कवि प्रदीप की बात मैं करना चालू करूंगा कि जिन्होंने कहा था कि दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है, आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है। या फिर उन्होंने गांधी के बारे में एक बहुत सुंदर गीत लिखा था, दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, धरती पे लड़ी तूने अजब ढंग की लड़ाई, दागी न कहीं तोप न बंदूक चलाई, दुश्मन के किले पर भी न की तूने चढ़ाई, वारे फकीर तूने क्या कर दिया कमाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। उसी तरह से
तो ये इस तरह से हमने हम अगर हम सिनेमा हिंदी सिनेमा की तरफ जाए और आपको धीरे धीरे समझ में आता है कि एक नेहरूवियन ड्रीम था, उस नेहरूवियन ड्रीम के साथ में चीजें हो रही थी, गाने लिखे जा रहे थे। शांताराम फिल्म बना रहे थे, उसमें जेल के रिफॉर्म्स की बात हो रही थी, कैदियों के रिफॉर्म्स की बात हो रही थी, और उस समय उसमें गीत लिखे जा रहे थे, मालिक तेरे बंदे हम में से हो, हमारे करम नेकी पर चले पति से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। बहुत ज्यादा मालिक, एक थोड़ा सेक्युलर भाव था उसमें। मालिक डिफाइन नहीं किया था कौन है, ये नहीं कहा था कि ये कृष्ण तेरे बंदे हम या अल्लाह तेरे बंदे हम। उसमें एक और ये भरत व्यास जी का गाना है, पंडित भरत व्यास जी ने लिखा हुआ गाना है। तो इस तरह से हम उस एरा में घुसने की कोशिश करते हैं, और हम देखते हैं वही दुनिया में वही टाइम था जब हम रशियन रेवोल्यूशन से काफी समय आगे आके थे। पूरी दुनिया उस रेवोल्यूशन से प्रभावित हुई थी, वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था। दुनिया को बदलने का सपना देखा जा रहा था, ऐसा लग रहा था कि ये दुनिया हम बदल देंगे, हम ये दुनिया को कुछ करके बदल देंगे, और वो चीज हवा में थी। आज उस चीज पे सब लोग हंसते हैं, पर वो उस समय की सच्चाई थी। तो उसी समय पे वही नेहरूवियन ड्रीम को अगर मैं देखूं, साहिर लुधियानवी जैसे राइटर्स, शैलेंद्र जैसे राइटर्स, प्रोग्रेसिव राइटर्स की मूवमेंट से ये लोग आए हुए थे, और जिस तरह के मदर इंडिया जैसी फिल्में बन रही थी, नया दौर जैसी फिल्में बन रही थी, साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, साथ ही हाथ बढ़ाना साथ ही रहे। तो ये एक कम्युनिटी को लेके चलने वाली बात हो रही थी कि चलो हम तुम सब मिल के कुछ बनाते हैं, कुछ एक चीज बनाने की कोशिश करते हैं। या उसी तरह से ये साहिर ने लिखा था, साथी हाथ बढ़ाना साथी रहे, और उस मदर इंडिया जैसी फिल्म बन रही थी। तो ये सारी चीजें हो रही थी, और चूंकि ये सारी चीजें हो रही थी, लेकिन एक एक अनरेस्ट भी था, एक थोड़ी सी चीजें, थोड़ा सा कहीं ना कहीं टूट भी रहा था। सिस्टम में भरोसा आ रहा था, लेकिन सिस्टम से भरोसा जा भी रहा था। तो उसमें भी साहिर जैसे लोगों ने लिखा कि ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या हो, या वक्त ने किया, कैफी आजमी साहब का, ये वक्त ने किया क्या हंसी सितम, हम नहीं हम तुम रहे ना तुम। अच्छा, ये मैं उस संदर्भ में देख रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि हिंदी सिनेमा हमेशा सिर्फ इन्हीं बारे में। हिंदी सिनेमा का एक अंडरलाइंड थीम है जो तब से लेके आज तक चल रहा है, वो है प्यार, है ना। प्रेम से कभी हमने मुंह नहीं मोड़ा है, चाहे उस जमाने में हो चाहे इस जमाने में हो। तो हमारा प्रेम का गीत है, पियू बोले पिया बोले, वो तब से चला आ रहा है। और हमने उसमें उन शब्दों में भी बहुत ज्यादा कुछ हमने बदला नहीं है। मतलब साजन, बालम, पिया, यही अभी तक आ रहे तब से। मार दिया या छोड़ दिया, उसमें भी प्रेमी है, प्रेमी है। तो उस समय पे जैसे एक कुछ लोग हैं जिनके बारे में बोलना चाहूंगा। मजरूल सुल्तानपुरी साहब की बात अगर हम करें, कि उन्होंने कुंदन लाल सहगल से लेके, कुंदन लाल सहगल की हम बात कर रहे, हाँ, कुंदन लाल सहगल की हम बात कर रहे, तो कुंदन लाल सहगल से लेके आमिर खान तक गाने लिखे। मतलब उनका पहला गाना जो था कितना नाजुक है, पहला गाना नहीं था, उनके पहले गानों में से एक गाना था, कितना नाजुक है दिल ये न माना, हाय रे हाय जालिम जमाना। ये सहगल साहब ने गाया था। और आते आते पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा कैसा काम करेगा। तो मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा लंबी उम्र पोएट्स की होती है हिंदी सिनेमा में। बहुत लंबे चलते। फिर एक नाम नहीं है, ऐसे कई नाम मैं ले सकता हूँ। मजरूर सुल्तानपुरी साहब का नाम है, साहिर लुधियानी साहब का नाम है, वो जल्दी गुजर गए, लेकिन वरना उन्होंने जब से काम करना शुरू किया और जब तक वो रहे, वो काम करते रहे। मतलब प्यासा और वहां से शुरू होने वाले साहिर जाके दीवार, काला पत्थर वगैरह आगे तक कभी कभी तक हमको उनके गीत सुनने को मिलते हैं। उसी तरह से दूसरे नामों में अगर मैं लूं तो आनंद बख्शी साहब का नाम है, कि बहुत लंबे समय तक जिन लोगों ने लिखा है और वक्त को बदलते देखा है, और बदलते वक्त के साथ खुद भी बदले। इंदिवर का नाम है उसमें, मतलब मैं इंदिवर साहब का भी नाम ले सकता हूं उसमें, हाँ। और मजरूर सुल्तानपुरी साहब, मतलब, और सिनेमा एंटरटेनमेंट का भी विषय है, तो हम दूसरी तरह की चीजें, जैसे अभी कहा जाता है, आज बहुत सारे लोग बातें करते हैं कि
यार वो लैंग्वेज खराब हो गई है, इंग्लिश वर्ड्स आ गए हैं, हम लोगों को बहुत कंप्लेंट आती है कि इसमें यार बहुत सारे इंग्लिश वर्ड्स आ जाते हैं सिनेमा में। नहीं है ये सच, तब भी आते थे। CAT कैट, कैट माने बिल्ली, RAT रैट, रैट रैट माने चूहा। तब से हम इंग्लिश वर्ड्स को हिंदी में जगह देते आए हैं। जैसे जैसे चीजें बदलती है वैसे वैसे चीजें बदलते आए हैं। हिंदी सिनेमा, अच्छा दूसरा एक और पहलू है जिसके ऊपर मैं बात करना चाहूंगा, वो है बदलता म्यूजिक, क्योंकि उसने भी हमारे लिरिक्स को बदला है। और बदलता म्यूजिक का मेरा मतलब है बदलती टेक्नोलॉजी भी है उसमें। तो सिर्फ म्यूजिक बदला है, म्यूजिक के पैटर्न्स बदले, बट टेक्नोलॉजी भी उसके साथ साथ जिस 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 तरह से रिकॉर्डिंग टेक्निक्स बदली है, जिस जिस तरह से चीजें बदली है, उस तरह से हम हमारा म्यूजिक, हमारे लिरिक्स, हमारी सेंसिबिलिटी, सब कुछ बदलने लगा है। मजरू सुल्तानपुरी की बात करें तो मतलब मजरू सुल्तानपुरी ने, हम हिंदी सिनेमा ने बहुत सारे डिफरेंट फॉर्मेट्स को भी अपनी जगह दिए। उर्दू शायरी से गज़ल को लेके आए हैं, हम कव्वाली को लेके आए हैं, हम हमारे फोक संगीत से चीज़ों को लेके आए हुए, कवित्व को लेके आए हुए हैं, और उस सब चीज़ों को अमलगमेट करके बहुत खूबसूरती से एक नया फॉर्म हिंदी सिनेमा के लिरिक्स ने अपना बनाया है। और उसी में मतलब गज़ल की, मतलब मजरू साहब की एक गज़ल है जो मेरे को बहुत अच्छी लगती है। हम हैं मताए कूचा ओ बाजार की तरह, उठती है हर नज़र खरीदार की तरह। मजरू कह रहे हैं वो अहले वफा का नाम, हम भी खड़े हुए हैं गुनहगार की तरह। और यही मजरू लिखते हैं, गे गेली जरा टिम्बकटू, काठमांडू काठमांडू पहले हूँ, मैं हूँ लोहा चुंबक। तो जुमरू फिल्म का गाना है, किशोर कुमार के लिए लिखा है। और यही मजरू लिखते हैं, हम थे वो थी और समा रंगीन समझ गए ना। तो एक एक पूरा का पूरा एक कैनवस जो है वो हम इसमें देखते हैं। हिस्टोरिकल फिल्मों का भी एक बड़ा दौर हिंदी सिनेमा ने उसी वक्त पे देखा। मुगले आजम हो या बैजू बावरा हो, और उसमें मतलब शकील बदायूनी साहब जैसे राइटर्स ने बहुत खूबसूरत गाने लिखे। हमारा जो सेक्युलर फैब्रिक है वो भी बड़ा मज़ेदार रहा है उस समय पे। मतलब मुहे भूल गए सावरिया जिन्होंने लिखा है, जब जब प्यार किया तो डरना क्या कर, उसके अंदर इतना ये नहीं है। वो एक भजन लिखा है शकील बदायूनी साहब ने, कौन सा लिखा है वो, मोहे पनघट पे भी लिखा है, और एक कृष्ण का भजन भी है उनका। हाँ नहीं, हाँ मैंने लिखा था, वो भूल गया, कहीं तो चला गया। तो ये चीजें भी चल रही है। और उसके बाद हम धीरे धीरे फिर वही कैफी साहब की भी बात कर रहे हैं। उस समय पे हमने साहिर साहब की भी बात कर रहे हैं। हम हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। एक और मजेदार बात मुझे लगती है कि हमारी सिनेमा ने ना बहुत सारे रेफरेंसेस ऐसे भी लिए हुए, जैसे एक भजन था जो मैं इसकी बात कर रहा था। एक भजन है जो गांधी जी के पहले था, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, सुंदर विग्रह मेघ श्याम, गंगा तुलसी शालिग्राम। ये उसका ओरिजिनल गाना था, ओरिजिनल भजन था, जिसको गांधी ने जिसमें ऐड किया, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। अब ये बात साहिर ने आगे ले गए कि अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। लेकिन साहिर की जो बहुत खूबसूरत, मतलब मेरे ख्याल से ये अभी तक के सबसे अच्छे लिखे हुए गानों में से एक मैं मानता हूं इसमें, कि उन्होंने उसमें कहा है कि ओ सारे जग के रखवाले, निर्बल को बल देने वाले। वो ऊपर वाले से कह रहा है कि वो सारे जग के रखवाले, निर्बल को बल देने वाले, बलवानों को दे दे ज्ञान। अब ये अंडरस्टैंडिंग कोई गीतकार लाता है तो वो फिल्म के संगीत या फिल्म के रेफरेंस से कहीं आगे ले जाता है, बहुत आगे ले जाता है पूरे एक्सपीरियंस को। मेरे ख्याल से वो गाना फिल्म के बाहर निकल जाता है। जो नैरेटिव बनता है फिल्म का, जो डायरेक्टर के दिमाग में होता है, वो जो कहानी बताना चाहता है,
तो ये आप जैसे बता रहे कि ये सारे लोग ऐसे गाने लिखते थे, वो उसमें जेल हो जाते थे, वो सारी फिलोसफी और जेल भी हो जाते थे और उसके बियॉन्ड भी चले बियॉन्ड भी जाते थे, चले उसके जाते बियॉन्ड भी चले बियॉन्ड जाते भी थे, चले क्योंकि जाते। अगर आप उसको सेपरेटली सिर्फ गाने को उस तरह से देखें, और ये हमेशा हुआ है, हमेशा हिंदी सिनेमा के लिए मैं मतलब मैं अब अभी हमने बात करनी शुरू की तो मैं हमारे इस दौर तक आऊंगा। हमने हमेशा जो कंप्लेंट होती कि वो उस जमाने के गाने बड़े अच्छे थे, तुम्हारे गाने उतने अच्छे नहीं हैं, मैं उस कंप्लेंट के खिलाफ एक थोड़ी सी बात करना चाहूंगा, क्योंकि बदलते वक्त के साथ चीजें बदली है, और लेकिन लेकिन बुरे गाने तब भी होते थे, बुरे गाने आज भी होते थे। खैर, एक और मैं ऐड करना चाहूँगा, आप उसमें बोल सकते हैं, जैसे आपने बोला ना कि अलग अलग किस्म के गाने होते हैं। हाँ, तो खाली मैं एक थोड़ा सा मेरी रिसर्च है आपको ऐड करना चाहता हूँ, तो मैंने हमारी फिल्मों में गाने क्यों हैं इसको लेकर मैंने रिसर्च किया था। उसको लेकर मैंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, पहली मेरी डॉक्यूमेंट्री है सिंगिंग इन सिनेमा। तब मैंने देखा, मेरे रिसर्च में मुझे ये पाया कि हमारे जो गाने हैं ना, 26 किस्म के गाने हैं उसमें, 26 किस्म के गाने हैं। हमको लगता है कि दो चार रोमांटिक वोमेंटिक यहाँ हुआ, ऐसे नहीं, 26 किस्म के गाने हमारी हिंदी फिल्मों ने बनाए, 26 है वो। तो वो सारे गाने, और दूसरा एक मेरा एक था कि आप ये जो बता रहे ठीक, इसमें आप वो भी ध्यान दे सकते कि ये लिरिक्स जब बनती थी ना, तो बहुत जगह बहुत से गाने ऐसे हैं कि दे आर पार्ट ऑफ द नरेशन। अगर उसको आप गाने से निकाल देंगे ना तो पूरा नरेशन कॉलेस हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे गाने होते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। इस किस्म का वो जो उस जमाने के, या अभी भी आज मैं आपके बारे में बोलूँगा कि जो गीतकार होते थे, लिरिसिस्ट हैं, वो इस तरह से जैसे दे आर पार्ट ऑफ स्क्रिप्ट राइटिंग। मैं उसको हाँ हाँ। हाँ? मन तड़पत हरि दर्शन को हाँ आज, करेक्ट, मोहम्मद रफी एंड शकील, या करेक्ट। तो तीनों उसमें ही है। तो खैर, थैंक यू कौशल। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि मतलब हम तो खुद को एक्सटेंडेड स्क्रीन प्ले राइटर ही बोलते हैं। बाद में चीजें बदलने चली गई, बाद में चीजें इसलिए बदलती चली गई क्योंकि हिंदी सिनेमा का म्यूजिक एक बहुत बड़ी रेवेन्यू मेकिंग एक 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 चीज बना, जिसकी वजह से ऐसा होने लगा कि हिंदी सिनेमा के बजट का कुछ पैसा उस म्यूजिक के रेवेन्यू से आने लगा, और जब उसको उस रेवेन्यू से आने लगा तो फिर उसको मार्केट फोर्सेस उसको अलग से कंट्रोल करने लगी, और जब वो उसको अलग से कंट्रोल करने लगी तब वो बताने लगे कि क्या लिखना चाहिए क्या नहीं लिखना चाहिए। उस समय पे सिनेमा के म्यूजिक ने सिनेमा की स्टोरी का हाथ छोड़ा। ऐसा बनाओ कि शादी का गाना लगा दो, एक आइटम सॉन्ग लगा दो, एक ऐसा गाना लगा दो कि जो 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 सब जगह, मतलब जो पहले बोला जाता था कि आप एक राइटर को पहले ऐसा होता था कि एक लिरिसिस्ट को लिया जाता था कि एक फिल्म के गाने वो लिखेगा, लेकिन बाद में ये हुआ कि मल्टीपल लिरिसिस्ट को लेके, ये आइटम अच्छा लिखता है तो इससे आइटम लिखवा लो, अच्छा ये डिवोशनल अच्छा लगता है इससे डिवोशनल लिखवा लो, अच्छा ये, और और ब्रीफ ये होने लगा कि फिल्म से लेना देना हो का कोई जरूरत नहीं है, वो चलेगा, किसी भी फिल्म में लग जाए ऐसा गाना दो। तो ये एक पूरी की पूरी जर्नी है। बट ठीक है, ये मैं इसको अगेन, मैं ये जहां यहां पे जो भी बातें कर रहा हूं इसमें कंप्लेंट नहीं है या मैं कोई क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ जैसे जैसे मैंने चीजें देखी है वैसे वैसे मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूं। उसी समय पे उन्हीं राइटर्स के साथ में शैलेंद्र आए। शैलेंद्र के बारे में मतलब क्या, जितना बोला जाए कम है। उर्दू शायरी का एक 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 जमाना था, उसमें शैलेंद्र मिट्टी की खुशबू लेके आए, बहुत सारे खूबसूरत गाने उन्होंने लिखे, इतने लिखे कि पूछो मत। लेकिन एक हिंदुस्तानी की इमेज शैलेंद्र साहब ने दी थी कि मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिशतानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरे ख्याल से बहुत सारे सालों तक वो इमेज हमारी चली, जब तक जावेद साहब ने आगे जाके उसके बारे में दूसरा गाना नहीं लिखा कि हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी, कभी नए पैकेट में बेचे हम तुमको चीज पुरानी। ये बदला हुआ हिंदुस्तान था। आऊंगा मैं उसके ऊपर, उसके बारे में बात करेंगे। निकल पड़े हैं खुली सड़क पर अपना सीना ताने, मंजिल कहाँ कहाँ है जाना ऊपर वाला जाने। तो इस तरह की बातें शैलेंद्र साहब कह रहे थे। पहले पहल शैलेंद्र साहब ने गाने लिखे थे, उसमें एक, और हमेशा हमेशा हमारे यहाँ पे एक अमीर और एक गरीब की कहानी चलती थी हमेशा, हमारे हमारे नैरेटिव में वो हमेशा रहा है। उनका एक
एक गाना है मतलब जो मुझे बहुत अजीब तरह से अच्छा लगता है कि ठंडा पड़ा है चूल्हा और पेट में आग है, गर्मा गर्म है रोटियां, कितना हसीन ख्वाब है। तो ये शैलेंद्र जो है माटी की बोली लाए। और जो आपने 36 प्रकार के गाने हिंदुस्तान में होते हैं वो कहा जाता है उसमें से, तो वो सारे गाने हमने किसी न किसी विधा से लिए। जो वही मैं कह रहा हूँ कि कव्वाली से लिए, फोक से लिए, सूफी इस से हमने बहुत कुछ लिया। शैलेंद्र साहब भी फोक पे उनका बहुत खूबसूरत काम है। अगर हम तीसरी कसम के गाने देखें तो चलत मुसाफिर मोह लिया रे पिंजरे वाली मुनिया मुनिया हो, या पान खाए सैया हमारो, या सजनवा बैरी हो गए हमार, चिट्ठिया हो तो हर कोई बाचे, भाग न बाचे कोई, करम्बा बैरी हो गए हमार। इस तरह की चीजें शैलेंद्र साहब ने गीत लिखे। वही वो आइडियलिज्म वही था कि किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, ना किसी का दर्द ले सके तो ले उधार, जीना इसी का नाम है। तो पूरे जीने की डेफिनेशन को उन्होंने हमें हमें बताया। हमने हमने हर तरफ से, हिंदी सिनेमा इज अ बोरोअर, मतलब बोरोअर नहीं, चोर है। हम हमको जो चीज अच्छी लगती है ना हम ले लेते हैं। हमको कहीं कव्वाली सुनाई दी, हमने कव्वाली लेके आ गए। हमको कहीं पे भजन सुनाई दिया, हम वो भजन लेके आ गए। हमको गोवा के या एंग्लो इंडियन जो म्यूजिशियंस थे वो समझ में आ गए, तो हमने हमारे क्लासिकल ट्यून्स को उनके साथ जोड़ दिया। मतलब हमारे पुराने गाने, सी रामचंद्र के गाने या इस तरह के पूरे गाने अगर आप देखोगे तो वो बहुत ही खूबसूरत अमलगमेशन है। हमारी इंडियन ट्यून्स है और ऑर्केस्ट्रा जो बज रहा है वो पूरा वेस्टर्न सिम्फनी का ऑर्केस्ट्रा बज रहा है, हमारे एंग्लो इंडियन। तो हमने ये एक बहुत खूबसूरत फॉर्म तैयार किया। वो जो फॉर्म लगातार बदलता है, वो रोज बदलता है। उस फॉर्म को कभी आप ये नहीं कह सकते कि हिंदी सिनेमा के म्यूजिक का फॉर्म ये है। वो बहती हुई धारा है, रोज बदलती है, रोज कुछ नया उसमें ऐड होता है, रोज कुछ उसमें नया। इतना हमने लिया कि हमने ओरिजिनल उसके स्रोत जो है, उसके उसका जो उद्गम है उसको ही खत्म कर दिया। मतलब आज कोई लड़का बच्चा कहीं कोई अच्छा गाने वाला दिख जाए तो इंस्टाग्राम पे उसके आते ही तीसरे दिन वो रिकॉर्डिंग स्टूडियो में होता है और गा रहा होता है। तो अब बताओ बताओ सर। कि आपने जो बताया ना कि ओरिजिनल और ये मराठी में जो ती फुलराणी पु ल देशपांडे ने प्ले लिखा था वो पिग्मिलियन है ओरिजिनल बर्नार्ड शॉ का। तो वो इस तरह से उन्होंने बनाया था फुलराणी कि हम तब यंग थे, हम मजाक करते थे पुलन का कि ये इन्होंने पहले लिखा, बाद में बर्नार्ड शॉ ने पिग्मिलियन लिखा। ऐसा बहुत अलग अलग विधाएं, बहुत सारे खूबसूरत। और फिर वो एक एक पूरी की पूरी जर्नी चलती रही जिसमें हम बिमल रॉय का नाम लेना ही पड़ेगा हमको। शैलेंद्र के साथ साथ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के, शैलेंद्र के बाद एक और कमाल का राइटर मिला, गुलजार साहब। और गुलजार साहब जिन्होंने अपना पहला ही गाना लिखा था, मोरा गोरा अंग ले ले मोहे श्याम रंग दे दे, चुप जाऊंगी रात ही में मोहे पी का संग दे दे। और उसके बाद उन्होंने जो चांद से आशिकी की है, वो हिंदी सिनेमा में मतलब इतने चांद के रंग तो शायद किसी ने नहीं दिखाए होंगे। हम सब लोग यही, फिर उसी अनरेस्ट की बात कर रहा हूँ, नेहरूवियन अनरेस्ट की बात कर रहा हूँ। काम नहीं होना, ये नहीं होना, वो नहीं होना। उस समय गुलजार साहब ने एक गाना लिखा था, हाल चाल ठीक ठाक है, सब कुछ ठीक ठाक है, बीए किया है एमए किया, लगता है वो भी एमए किया, काम नहीं है वरना यहां आपकी दुआ से सब ठीक ठाक है। तो ये लड़का था अपनी बेरोजगारी पे हंस रहा था। वही लड़का जंजीर तक आते आते गुस्सा हो गया। ये बिकेम वेरी एंग्री। सलीम जावेद का उदय हुआ और मेरे ख्याल से वो समय था जब नेहरू का जाना हुआ, इंदिरा गांधी का आना हुआ, और उस समय तक समाज को ये लगने लगा था कि भाई यहाँ कुछ नहीं बदल सकता, अगर बदलना है तो खुद कुछ बदलना पड़ेगा, चाहे उसके लिए रास्ता टेढ़ा करना पड़े, टेढ़ा करना पड़ेगा। अभी तक की थीम्स में, सिनेमा की थीम्स में ये बात नहीं थी, लेकिन जो सलीम जावेद का नायक आया, और सलीम जावेद के साथ साथ उस वक्त का जो नायक आया, उस नायक ने उसको हम एंग्री यंग मैन ही बोलते हैं। यही वही एंग्री यंग मैन जब एंग्री नहीं हुआ था तब खुद पे हंस रहा था गुलजार साहब के गाने में कि हाल चाल ठीक ठाक है, गोल मोल रोटी का पहिया चला, पीछे पीछे चांदी का रुपया चला, रोटी को बेचारी तो चीड़ी ले गई, चांदी लेके मुंह काला कौवा गया। और क्या कहूं,
छोटी मोटी चोरी या रिश्वतखोरी देती है, अपना गुजारा है। और वही आदमी जब सिनेमा में आया और वो सिनेमा चेंज हुआ एंग्री। अब यही साहिर साहब, यही मजरू साहब इस बदलते वक्त में लिख रहे थे। लेकिन मुझे एक बड़ी मजेदार बात लगती है कि मैं कल ही रिसर्च कर रहा था, और अगर मैं गलत हूं तो मुझे बताना, लेकिन इस एंगर का कोई झलक किसी भी गाने में नहीं मिलती, ना दीवार के, ना त्रिशूल के, ना काला पत्थर के, ना किसी भी। मुझे लगता है कि उस समय वो एक शुगर रैप्ड था, क्योंकि उस समय उस बाकी गाने सिर्फ लव सॉन्ग हुआ करते थे, या दोस्ती के गाने हुआ करते थे, या एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए वो कुछ नहीं जैसे गाने हुआ करते थे। तो मुझे लगता है कि अगर जावेद साहब उस वक्त लिरिक्स लिख रहे होते तो हमको कुछ एक अलग तरीके का एंगर उन गानों में देखने को मिलता। और वो एंगर जो आगे चल के जावेद साहब ने जब खुद लिरिक्स भी लिखते थे, और जब उन्होंने अर्जुन जैसी फिल्म बनाई, मामैया केरो 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 मामा, दुनिया माने गोरा बुरा तो गोली मारो, डर के जीना भी कोई जीना यारो, मतलब वो जो रिगर है वो हमको कभी कभी देखने को नहीं मिला उस तरह से। दूसरे एक रोमांटिक दौर हमारे यहाँ पे जो बहुत रैंडम तो नहीं चल रहा है ना, ठीक ठाक है ना? हाँ, मतलब मुझे ऐसा नहीं समझ लग रहा है कि मैं, मतलब एक दूसरा दौर था जो रोमांस का दौर था, जो उस वक्त तक आते आते खत्म हुआ था। आराधना राजेश खन्ना का दौर, उसमें मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, उसमें भी आनंद बख्शी साहब जैसा एक ऐसा लिरिक राइटर हिंदुस्तान को मिला था जिसने गिव हिम अ सब्जेक्ट एंड he'll write you a song, say a word and he'll write you a song। एक एक कोई भी शब्द उनको बोल दो तो वो उस शब्द पे पूरा गाना आपको लिख देंगे। और ऐसा गाना जो उसकी साहित्यिक वैल्यू भी बड़ी होगी, उसकी लिटरेरी वैल्यू भी बड़ी होगी, उसकी पॉपुलर वैल्यू भी बड़ी होगी, उसमें इमोशन भी होगा, एवरीथिंग विल बी देयर। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, चिंगारी कोई भड़के, या उस तरह से देखा जाए तो मुझे जो उनका गाना बहुत बहुत ज्यादा पसंद है वो है मैं शायर बदनाम मैं चला, या जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकान वो फिर नहीं आते। उसमें उन्होंने एक अंतरा तो सिनेमा पे लिखा है, आंख धोखा है क्या भरोसा है सुनो। क्या है, आदमी ठीक से देख पाता नहीं और पर्दे पे मंजर बदल बदल जाता है, एक है ना। तो इस तरह की इमेज हिंदी सिनेमा में, और एक सैड, मतलब एक उदास गाने में कि लेते हैं, एक दूजे के लिए में उन्होंने ए प्यार तेरी 16 बरस की बाली उम्र को सलाम, ए प्यार तेरी पहली नजर को सलाम, जैसा अद्भुत गाना लिखा है। मतलब वो मुझे नहीं लगता, और वो ना किसी जॉनर में उस तरह से वो नहीं बैठते कि ये उर्दू शायरी से आते हैं, वो पंजाबी भी है, इमली का बूटा बेरी का बेर, इस जंगल में हम दो शेर, चल घर जल्दी जल्दी हो गई देर, वो भी बख्शी साहब ही लिखते हैं। और बख्शी साहब ये भी लिखते हैं कि फूलों पे सोना था, कांटों पे चलना था, फूलों पे सोना था, और अभी इस दिल को किस्मत पे रोना था, जाने ऐसे कितने बाकी छोड़ के काम, मैं चला मैं चला मैं चला, महफिल से नाकाम मैं शायर बदनाम, रास्ता रोक रही है थोड़ी जान है बाकी, जाने टूटे दिल के क्या अरमान है बाकी, जाने भी दे दिल सबको मेरा सलाम, मैं शायर बदनाम। तो ये बख्शी साहब थे। बहुत सारे गाने, फिर मैं कह रहा हूं कि वो अमीर गरीब अभी भी हमारे सिनेमा का हिस्सा था। अभी भी अगर हमारा सोशल स्ट्रक्चर जो था वो सिनेमा अभी भी सबके लिए बन रहा था, उसमें एक अमीर था एक गरीब था। अमीर जनरली बुरा था, गरीब जनरली ठीक ठाक आदमी था, अच्छा आदमी था। उसको मतलब प्यार के गाने भी उसमें, मैंने चांदी की दीवार न तोड़ी, प्यार भरा दिल तोड़ दिया, एक धनवान की बेटी ने निर्धन का दामन छोड़ दिया, मतलब अद्भुत सेंटिमेंटलिटी है। उस तरह से चीजें बदल रही थी, चीजें चल रही थी। वो एक लंबा दौर चला। वो दौर खत्म होते होते तक भी ये इमेजेस नहीं बदली थी। मतलब वो दौर बाद में स्टेल हो गया था। हालांकि मैं बहुत बड़ा वक्फा स्किप कर रहा हूं। हमारी अभी तक सिनेमा ना हमारी लोकल आइडेंटिटीज, लिरिक्स भी
लेके आने लगे थे, मतलब बहुत जोरों से खाई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। तो इस तरह से हम हमारे 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 लोकल जो चीजें थी, हमारा जो दूसरे शहरों का जो 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 रंग था वो लाने लगे थे। हिंदी सिनेमा ने इसके अलावा बहुत सारी चीजें, मतलब बहुत सारे दूसरी भाषाओं से भी चीजें हमने हमने ली है। मुत्त कोड़ी खव्वाड़ी हड़ा, रमैया वस्तावैया, या नवराई माझी सॉरी, या मोंटारे। बट इट्स अ ब्यूटिफुल थिंग, यू नो, एंड इट्स एक्सेप्टेड। लोग उसको कबूल करते हैं कि आप एक दूसरी भाषा का कोई शब्द उसमें डालो। हिंदी सिनेमा ने ये काम भी बहुत बहुत बड़े लेवल पे किया है। पैरेलल सिनेमा का एक मोमेंट शुरू हुआ जिसने पूरी तरह से गीतों को नकारा शुरुआत में। मतलब उस दौर के उन्होंने कहा कि यार ये मेलोड्रामा जो है, ये जो है ओवर द टॉप है, इससे नहीं, और रियलिटी के करीब लेके आते सिनेमा को। लिप सिंक के गाने नकारते थे हाँ, स्पेशली। बाद में लिप सिंक के फिर भी वो भी रेजिस्ट नहीं कर पाया अपने आप को गाने डालने से। शुरुआत की फिल्म में अगर आप देखोगे तो उसमें, अगर श्याम बाबू की फिल्म में अगर आप देखोगे तो गाने नामो निशान नहीं है। लेकिन बाद में धीरे धीरे वो भी नहीं रेजिस्ट कर पाए, थोड़ा गाना उनको भी लगा कि डालना पड़ेगा, इमोशन को अगर हाइटेंड करना पड़ेगा। इमोशन हाइटेंड करना ही पड़ता है इस कंट्री में। जब तक आप इमोशन को सुई नहीं मारोगे ना, तो तब हिलती नहीं बात। तो और गाना वो उसमें बहुत हैंडी है। गाना जब कोई गा के एक इमोशन को आपको सुनाता है तो वो फिर उड़ता है। मंथन में उन्होंने बहुत इस तरह, मंथन में बहुत सुंदर गाने थे उसके। मंथन में मारो गाँव काठियावाड़, वो गाना था। उनके दूसरे भी गाने थे, मंडी में उनके गाने थे बहुत सुंदर। वनराज भाटिया का म्यूजिक था, और मेरे ख्याल से शुरुआत मंथन से की हाँ, उन्होंने अच्छी तरह से। वसंत देव के थे गाने उन्हें। वसंत प्राध्यापक वसंत देव के गाने थे। सूरज का सातवां घोड़ा उसमें भी थे, मंडी में भी थे, मंडी में। भूमिका में भी थे। भूमिका भी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो वो थे, लेकिन वो गाने उस तरह से गाने नहीं बने। मतलब अगर आप उसी समय के दूसरे गानों को अगर आप देखोगे तो वो गाने अनअपोलोजेटिकली सिनेमा का हिस्सा बनाए जाते थे। हमको चाहिए थे वो गाने। मतलब हमारा नायक अचानक बोलते बोलते एक कहीं से वायलिन शुरू हो जाएगा, कहीं से फ्लूट शुरू हो जाएगी, और हमको बुरा नहीं लगा कभी उस बात का। हमको कभी ऐसा लगा नहीं कि ये कैसे हो गया, ये अच्छा ये पेड़ के पीछे घूम रहे हो, अचानक से कैसे गाना बजने लगा। तो खैर ये हो रहा था, लेकिन फिर भी वो भी एक आते आते एक और जगह पे आके वो हुआ कि पैरेलल सिनेमा के लोगों को भी समझ में आया कि नहीं, इसको भी थोड़ा गाने तो भी चाहिए होंगे, और थोड़ा सा रियलिटी। विनोद चोपड़ा, फॉर दैट मैटर विनोद चोपड़ा की परिंदा है, या सुधीर मिश्रा ने एक्सपेरिमेंट्स करने जब फिल्में बनानी शुरू की, तो उसमें इस रात की सुबह नहीं इज अ बिग फिल्म, निदा फाजली साहब के गाने थे उसमें। और उसमें आपको समझ में आने लगा कि हाँ, नैरेटिव तो बहुत रियलिस्टिक है, इतना वेरी क्लोज टू रियल है, लेकिन कोई स्पेस ढूंढ के, कोई जगह ढूंढ के उसमें गाना भी आता है। और ऐसा करके एक नया जॉनर हिंदी सिनेमा का बनने लगा। अब एक हमारे यहाँ पे एक गाना आया था, अगेन एक गाना आया था, चोर मचाए शोर पिक्चर का। वो गाना था, ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, रह जाएंगे पैसे वाले देखते रह जाएंगे। ग्लोबलाइजेशन आया इंडिया में, वो इंदिरा गांधी के दौर के बाद ग्लोबलाइजेशन आया, हमारे यहाँ पैसा आया, और ये जो लोग फिल्में बना रहे थे इनके बच्चे फिल्में बनाने लगे। दिस इज ओनली माय ऑब्जर्वेशन। और हम भी हमारे भी पेरेंट्स ने, मतलब पूरे देश के साथ ये हुआ कि हमारे भी पेरेंट्स जिन्होंने मेहनत करके हमको बड़ा किया था, उन्होंने हमको थोड़ा लाड़ प्यार देना शुरू किया। हमारे लिए कोई कमी नहीं होने का दौर था। और इसी ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे में से दिल वाले दुल्हनिया बनी, उसमें से पैसे वाले देखते रह जाएंगे निकल गया, पैसे वाले ही पैसे वालों से लड़ जाएंगे। और यहां से मुझे समझ में आता है, जितना मैंने देखा है, कि हमारे यहां से एक क्लास का पूरा सिनेमा से टाटा बाय बाय थैंक यू हो गया। हमने फिल्में बनानी शुरू की जो हमारे मिडिल क्लास को, हमारे अपर मिडिल क्लास को, और वो उसका रीजन भी मुझे ये लगता है कि उसका रीजन फिर वो ये मार्केट फोर्सेस ही है। क्योंकि
जैसे जैसे स्ट्रक्चर्ड बिजनेस बनता गया वैसे वैसे लोगों को भी यह समझ में आता गया कि उन्हीं को दिखाओ जहां से ज्यादा पैसे कमा सकते हैं, उनको क्या दिखाना जहां से पैसे नहीं, जो बायर नहीं है उस तक क्यों पहुंचना। ये अगेन दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग, मैं हो सकता है गलत हूं, आप मुझे इसमें करेक्ट कर सकते हैं। पर गोविंद जी ने किया ना, गोविंद नीलानी ने तक्षक जो बनाई थी, हाँ, तो उसके गाने का शूटिंग चल रहा था राजकमल स्टूडियो में, वहाँ गया था। तो मैं अंदर गया तो एक शॉट हो गया, मैं अंदर गया तो गोविंद जी ने मुझे देखा, तो गोविंद जी ने पूछा कि अशोक कैसा लग रहा है गाना, तो मैं हंसा। तो यार मैं सीरियसली पूछा तुम हंसते क्यों हो? तो गोविंद जी, जिस किस्म का गाना ही आपके फिल्म में नहीं जेल होता, गोविंद नीलानी की फिल्म शाम में उसमें नहीं होता। तो उन्होंने एक लाइन बताई, उन्होंने बोला अपना जो, तो बोला कि क्या है कि अशोक वी वांट टू रीच टू द लार्जर ऑडियंस। तो ऐसे नहीं पहुंच सकते, उनके उनका उनका घराना अलग है, उनका जॉनरा अलग है। वो इस किस्म के गाने नहीं बना, तक्षक नहीं चली ना, वो गाने भी नहीं चले। लेकिन ये जो हमने अभी भूमिका के गाने, मंथन के गाने जो बोले, बाकी श्याम बाबू के शुरू के गाने, वो भी गाने हम लोग बाकी हिंदी सिनेमा गाते जैसे गाते वैसे कभी गाते नहीं हम लोग। नहीं है लेकिन वो, हाँ क्योंकि वो वैसे हाँ, गाने नहीं है, नहीं है वो ऐसे जैसे गाने नहीं। उसका उनका अप्रोच वैसा नहीं है। लेकिन मैं वही कह रहा था कि मैंने ये यहाँ तक आया दिलवाले दुल्हनिया तक, लेकिन इसके पहले जो हिंदी सिनेमा का दौर था ना, वो उसके पहले इतना अलग लेवल पे चला गया था हमारा पूरा डिस्कोर्स। वो थोड़ी सी अमीर गरीब की बात थी, लेकिन उसको कहने का तरीका बहुत क्रैश हो गया था, बहुत ही ये हो गया था। एक अनु मलिक का और शैली शैलेंद्र का गाना है जो मुझे बहुत मज़ेदार याद है, वो मुझे बचपन से सुना हुआ था कि सलाम सेठ अपने लायक काम सेठ, आप तो खाए मुर्ग मुसल्लम अपनी तो बस राइस प्लेट। तो इस तरह का एक गाना उस समय पे था। इंदिवर जिन्होंने मतलब इतने सुंदर सुंदर गाने लिखे शुरुआत में, दिल की सुगंध है सांसों में, बाहों में कमल की कोमलता, ये लिखने वाले इंदिवर ने आगे जाके गाने लिखने शुरू किया। आइसक्रीम खाओगी पिक्चर देखोगी, आइसक्रीम खिलाते हो पिक्चर दिखाते हो, बोलो इरादा है क्या 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 या तो हो गया मेरा पूरा, सॉरी काम टाइम हो गया क्या अपना? नहीं 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 नहीं, टाइम टाइम है, इसलिए मैंने हो गया पूरा, मैं डर गया। नहीं नहीं, हो गया नहीं, खो गया। खो गया। सर आप अगर खत्म हो गया तो एक गाना गा दूंगा, टेंशन नहीं है। हाँ हाँ, तो इस तरह के गाने जो उस समय पे आने लगे, सलाम सेठ आप तो खाए मुर्ग वसल्लम, हाँ, जवानी जवानी ढलती जवानी होठों पे आई है आग प्यार की, झझ झझ झोपड़ी में ये सब हिंदी ने लिखे, झझ झझ झोपड़ी में झझ झझ चार पाई। और वहां से निकल के फिर लेकिन एक रिफ्रेश्ड लुक आया हिंदी सिनेमा को, वो आया दिलवाले दुल्हनिया से या हम आपके कौन जैसी पिक्चरों से। वहां से फिर से वो जॉनर पूरी तरह से हिंदी सिनेमा को नया जीवन मिला, नए तरीके से वो खड़ा हुआ, नए कथानक उसमें आने लगे, नई तरीके की सेंसिबिलिटी उसमें दिखाई देने लगी। हम आपके हैं कौन भी उसमें उसी में मैं शामिल करूंगा। और उसको आगे ले जाते हुए एक और फिल्म बनी थी दिल चाहता है। अब दिल चाहता है, अब मुझे बड़ा मजेदार लगता है ये बात कि उसके पहले का जावेद साहब का जो नायक था वो जिम्मेदार नायक था, और वो धीरे धीरे हालात के चलते गैर जिम्मेदार बनता है। दिल चाहता है का नायक जो है वो गैर जिम्मेदार नायक है, और वो धीरे 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 समय के चलते जिम्मेदार होता जाता है। और अगेन फिर वो जावेद साहब ही थे जिसने इस पूरी बात को गाने में समराइज किया, और उन्होंने कहा कि हम हैं नए अंदाज क्यों हो पुराना, है ना। उन्होंने कहा कि बदले दुनिया बदलने भी तो, लड़ती है दुनिया लड़ने भी तो, हम अपनी धुन में गाए, हम हैं नए अंदाज क्यों हो पुराना। अब हम हैं नए, ये बात उन लोगों को तो नहीं पता थी वो नए, वो तो वही थे, हम जावेद साहब को पता थी कि ये लोग नए हैं, ये नए तरीके से दुनिया को देख रहे हैं। तो मुझे वो लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लगती है कि हम हैं नए अंदाज क्यों हो पुराना। और वहां से फिर एक पूरा का पूरा हमारे यहाँ पे दौर हिंदी सिनेमा का शुरू हुआ, जो हमारे यहाँ पे बहुत बड़ा एक दुनिया का मतलब एक चीज शुरू हुई कि नए नए थीम्स आने लगे, नई नई चीजें बोली जाने लगी, हम और रियलिज्म के क्लोज जाने लगे। हमने एक बहुत खूबसूरत एक उसके बाद में एक हमने
एक छोटी सी फिल्म है जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगा, नॉट बिकॉज चित्रा पालेकर इज सिटिंग हियर, बट बिकॉज आई वांटेड टू मेंशन अबाउट दैट फिल्म. दैट फिल्म वाज थोड़ा सा रूमानी हो जाए. और थोड़ा सा रूमानी हो जाए एक ऐसी म्यूजिकल थी जो वेस्टर्न म्यूजिकल के इसमें से आई थी. उसमें उसमें संवाद म्यूजिकल हो जाते थे. बोलते बोलते गाते गाते लोग बोलने लगते थे और बोलते बोलते लोग गाने लग जाते थे और कुछ बदलता नहीं था. कुछ एक अलग से ऑर्केस्ट्रा नहीं आता था, कुछ एक अलग चीज. और उसके गाने कमलेश पांडे साहब ने लिखे थे और चित्रा ने भी उसमें हाथ लगाया था. तो नॉट जस्ट बिकॉज चित्रा इज हियर आई एम सेइंग दिस, ये मैं वैसे भी बोलने वाला था, इसको चेक कर लेना. फिर उस तरह से फिर हम चीजें बदलती चली गई. बहुत सारे नए नए लिरिक राइटर्स भी आने लगे. समीर साहब ने बहुत कुछ कमाल का काम उस समय पे किया. फिर उदय हुआ हमारे यहाँ पे सुधीर मिश्रा, अनुराग कश्यप का, राम गोपाल वर्मा का. अनुराग कश्यप ने फिर चीजों को बदलना शुरू किया. चीजें उसने ही स्टार्टेड सीइंग डार्कर साइड्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, उसके इनर्स के बारे में बात करने लगी. और एक फिल्म उन्होंने की थी जो मेरे ख्याल से बड़ी इंपॉर्टेंट फिल्म है, वो है देवटी, जिन्होंने हमारा जो एज ओल्ड देवदास की जो कहानी है उसको पूरा अपसाइड डाउन पलट दिया. उसको एक लड़की के नजरिए से देखा और उसमें टॉक्सिक लव को उन्होंने पहली बार एक गाने में ढाला. अमिताभ भट्टाचार्य ने, कैसा तेरा प्यार गुस्सा, कैसा तेरा प्यार, तेरा इमोशनल अत्याचार. ये हमारे यहां पे पहली बार ये टॉक्सिसिटी लिरिक्स में दिखाई दी. और उसके बाद कई गाने ऐसे बने, मतलब कई गाने उन्होंने उस समय पे अनुराग की फिल्मों में भी आए. गैंग्स ऑफ वासेपुर में उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए. वरुण ग्रोवर ने बहुत बहुत जबरदस्त गाने लिखे. तार बिजली से पतले हमारे पिया, या ओ वो मनिया, या आई एम हंटर, या फिर मेरा जूता फेक लेदर, दिल छीछा लेदर. हाँ सॉरी, मैं थोड़ा मेरे दोस्तों का ही है तो माफ कर देंगे. और वही चीज आगे आगे बढ़ने लगी और पॉपुलर सिनेमा भी इन सारे पैटर्न्स को एक्सेप्ट करने लगा. प्यार की वो जो एक घटना थी कि एक ही प्यार करेंगे सारी उम्र, 100 बार मैंने जन्म लिया, वो चेंज हुई. लड़की गाने लगी कि दिल पे पत्थर रख के मैंने मेकअप कर लिया, सैया जी से आज मैंने ब्रेकअप कर लिया. तो ये एक बहुत खूबसूरत नए तरह की बातें हमारे. अब लोग कहते हैं कि अरे यार ये कोई गाना है क्या, क्योंकि हमको चांदी की दीवार ना तोड़ी सुना हुआ है हमने. लेकिन ये आज के समय का गाना है. आप देखिएगा ये गाने याद रहेंगे, बहुत लंबे समय तक याद रहेंगे, क्योंकि इस तरह से लड़कियां लिखने लगी. हालांकि पहले भी हिंदी सिनेमा में फीमेल लिरिसिस्ट थी, माया गोविंद जी थी, और उनका नाम मैं भूल गया, जिन्होंने सई परांजपे की फिल्मों के गाने लिखे थे. इंदु जैन जी थी जिन्होंने काली घोड़ी द्वार खड़ी जैसा गाना लिखा था. या कौसर मुनीर अभी है, तो वो वहां पे मैं आ रहा हूं. तो ये पुराने समय की थी. और आज के समय में कौसर मुनीर है, अन्विता दत्त है, इन्होंने कई कमाल के गाने लिखे हुए हैं. झल्ला मेरा छल्ला. अभी कौसर मुनीर का रीसेंट एक गाना आया हुआ है, वो उनसी दो पत्ती का गाना है, बड़ा पॉपुलर से जॉनर में गाना है कि रांझण 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 तेरी हीर ने तेनू छोड़ दिया. मुझे ये बहुत मजेदार, ये सिर्फ लड़की लिख सकती है ये, क्योंकि हीर रांझा की कहानी कभी भी आज तक अमर प्रेम की कहानी की तरह देखी गई है, लेकिन उसको अपसाइड डाउन पलट दिया है. और ये काम हम करते ही रहे, हमेशा करते रहे. कौसर मुनीर का एक गाना, एक और बहुत मजेदार गाना है जो मुझे बड़ा मजेदार लगता है, कि माना कि हम यार नहीं, ये तय है कि प्यार नहीं, फिर भी नजरें न मिलाना क्योंकि दिल का एतबार नहीं. एंड दिस इज लाइक वन एंड रिटन बाय अ गर्ल, यू नो, लाइक वाओ. तो वही है, पहले घुंघरों की तरह बजता ही रहा हूं, ये सेंटिमेंटल चल रहा था ना, घुंघरों की तरह बजता रहा, या मोहे भूल गए सावरिया. वो पूरा बात बदल गई. चल बेटा सेल्फी ले ले रे पे आ गया हिंदी गाना. और
इसमें एक बड़ा मैं और एक बड़ा हाथ, सॉरी मैं थोड़ी चीजें स्किप हो रही है, पर एक मैं बड़ा हाथ जो मैं कह रहा था कि चीजें जो बदलती है, उसमें एक उसी समय पे एक और चीज आई और एक और तूफान आया हमारी हिंदी सिनेमा में, उसका नाम था A.R. रहमान। और A.R. रहमान ने फिर सारे स्ट्रक्चर्स तोड़ी है, मेलोडी के सारे स्ट्रक्चर्स तोड़ी है। वो अंतरा मुखड़ा मुखड़ा अंतरा के जो स्ट्रक्चर्स थे, जो जो हमको पता थे कि यार ये ऐसे पैटर्न्स में आ गया, उन्होंने एक कैनवस लिया और उस कैनवस पे मुक्त पेंटिंग की। तो लिरिक राइटर भी अलग तरह से लिखने लगे, सिंगर्स अलग तरह से गाने लगे, मल्टीपल सिंगर्स आने लगे। ये लॉजिक ही चला गया कि एक हीरो की आवाज होगी, प्लेबैक सिंगिंग होगी, एक हीरोइन की आवाज होगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, कभी भी कुछ भी हो सकता है गाने में। और उन्होंने एक सेपरेट एंटिटी, एक सेपरेट आर्ट की तरह गाने को देखा। पूरा एक नया कैनवस लोगों को दिया। और जो चीजें R.D. बर्मन के समय से शुरू हुई थी, थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक चीजों का इस्तेमाल, टेक्नोलॉजी बदल रही थी, और उन्होंने R.D. ने भी शुरू किया था। अगर R.D. रहमान के समय में होते तो वो भी रहमान ही होते, या तो उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन R.D. को R.D. होना पड़ता है, रहमान को रहमान होने के लिए। तो R.D. भी करे थे, लेकिन रहमान ने पूरा पूरा इस्तेमाल और दोहन करना शुरू किया जो टेक्नोलॉजी आपके पास आई थी। और उस टेक्नोलॉजी की मदद से एक इलेक्ट्रॉनिक साउंड को वो हमारे जहन में लेके आया, और ऐसा लेके आया कि आज भी हम उसी साये में जा रहे हैं। अच्छा, उन्होंने ऐसा नहीं किया कि वो साउंड को लाए तो उन्होंने हमारे इंडिजीनियस साउंड्स को वो भूल गए, या हमारे उन्होंने शहनाई का भी उतने अच्छे से इस्तेमाल किया, उन्होंने सितार सारंगी उसका भी उतने अच्छे से इस्तेमाल किया, और उन्होंने मौका दिया लिरिक राइटर्स को नए सिरे से अपने आप को एक्सप्लोर करने का। उसी समय वर्ल्ड में नुसरत फतेह अली खान साहब का भी समय था, तो हमारे गानों में सूफीज़म आया बहुत सारा। हमने प्यार को सूफी नजरों से देखना शुरू किया, और बहुत समय तक देखते रहे हम। चल छैया 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 गुलजार साहब ने लिखा है, या सतरंगी रे, मतलब ऐसे कई गाने जो आपको ज्यादा याद हो गए, मुझे एक दो याद है, पर हमने वो एक हमको नया ढंग आया। इस वक्त पे तक हम लोग, हमारा जो पॉपुलर फिल्म मेकर था वो भी लिपसिंग से दूर जाने की कोशिश करने लगा था। मतलब मुझे दो बड़े लोगों के साथ मेरा डिस्कशन हुआ था, एक थे इलियाराजा साहब और एक थे यश चोपड़ा साहब, और दोनों ने एक ही बात बोली थी कि कुछ भी हो, हीरो हीरोइन से लिपसिंग करा लो गाना, भले ही 2 लाइनें करवा लो, क्योंकि उससे फर्क पड़ता है। लोग गाते हैं, गाना चलता है, पॉपुलर होता है। और हमको लगता था कि नहीं, अब जरूरत नहीं है, हीरो हीरोइन क्यों गाएगा, वो तो दुख में बैठा हुआ है, गाना कैसे गाएगा। तो और वो लॉजिक, मैं लिरिक राइटर हूं, पर फिर भी मैं वो लॉजिक समझता हूं, मुझे समझ में आता है। मुझे लगा कि एक अलग तरीके से भी चीजों को देखना चाहिए ना। जैसे हिंदी सिनेमा के लिरिक्स में मैं ये बोलता हूं कि मैं चला गया, घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूं मैं कॉन्सेप्ट चला गया। एक अजीब सा, एक छायावादी एक कविता आने लगी, जिसने उसमें सेल्फ के बारे में बात करनी बंद कर दी, या तुम कितनी सुंदर हो, तुम कितनी ये हो, किसी लड़की की खूबसूरती की तारीफ करना नहीं, उसके अच्छा है चल छैया 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 सारे इश्क की छाँव चले सैया छैया छैया। तो एक वृहद, एक बड़ा रूप दिया इश्क को। तो हमको ऐसे लगता था कि यार हाँ, वो जो इफेक्ट चाहिए वो हम ला देंगे आपको, क्यों उसको लिपसिंग कराना है। रात हमारी तो चांद की सहेली है, कितने दिनों के बाद आई वो अकेली है, अंधेरे से करनी है, जी भर के करनी है बातें आज। इसको हीरोइन ने कैसे गाना चाहिए, क्यों गाएगी उसका सिर्फ। लेकिन राजा साहब और यश चोपड़ा साहब ने लफंगे परिंदे नाम की एक फिल्म में मैंने उनके लिए गाने लिखे थे, तो उन्होंने बताया था कि तुम लोग लिपसिंक नहीं कराते हो, तुम लोगों की प्रॉब्लम है। और शायद वो हमारी प्रॉब्लम रही भी होगी, क्योंकि पिक्चर बिल्कुल नहीं चली, पर पिक्चर से भी ज्यादा गाने नहीं चले। पिक्चर तो ठीक है, पर तो ये शिफ्ट्स आने लगे थे। गानों की लेंथ हमारे यहाँ पे फ्री प्ले की वजह से, जैसे उसका दूसरा प्रभाव ये भी है कि स्ट्रीमिंग, गाने सुने कैसे जा रहे हैं, कैसेट में सुने जा रहे, पहले रिकॉर्ड पे सुने जा रहे थे, तो 6 गाने 5 गाने होने जरूरी होते थे। सीडी पे तो एक एल्बम बनता था, आज सिंगुलर स्ट्रीमिंग्स होती है, तो एक पिक्चर के 5 गाने सुने जाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो 5 गाने होने भी, क्योंकि हर गाना इंडिविजुअली सुना जाने वाला है,
तो अब वो स्ट्रीम होने वाला है, तो फिर मुझे एक पूरा एल्बम कमाल का बनाने की कोई जरूरत नहीं है। पहले ये था कि गाना सुन के लोग पिक्चर में आते थे, आज भी आते हैं, लेकिन उनको सुनाने के लिए मुझे, एक गाना सुनाने के लिए भी मुझे 5 गाने बनाने पड़ते थे, क्योंकि नहीं तो सीडी नहीं आएगी। हम उसमें एक इंस्ट्रूमेंटल ट्रैक भी डालते थे ताकि 6 गाने बन के एक सीडी बने और हम उन लोगों को दिखाएं ये बात। तो वो भी निकल गया। अब हम सिर्फ एक गाना बनाते हैं, उस एक गाने की लेंथ भी छोटी छोटी होती चली गई। वो 3.5-4 मिनट का गाना से लेके अब हम 1 मिनट की रीले 60 देख लेंगे 1 घंटे में, बजाय कि एक 60 मिनट की फिल्म देखने के। मतलब मैंने तो ये भी देखा हुआ है कि लोगों का अटेंशन इतना बदल गया है कि मैं बात कर रहा हूँ और कुछ लोग रीले देख रहे हैं, या हम फिल्में देखते हुए, मैंने बच्चों को रीले देखते हुए देखा हुआ है। मतलब एक अच्छी खासी फिल्म चल रही है और यहाँ रील देख रहे हो, फिल्म देख रहे हो, रील देख रहे हो। तो हम अलग अलग चीजों से टेक्नोलॉजिकली फाइट कर रहे हैं, तो उसमें गाने का स्वरूप भी बदलने वाला है, ये होने वाला है। लेकिन फिर फिर मैं छोटा सा ये करके खत्म करता हूँ, ऑलमोस्ट आ गए एंड पे। मैं बहुत ज्यादा बोल सकता था, उसमें लिखा भी ज्यादा है, लेकिन हिंदी सिनेमा में और भी चीजें, मतलब जो मेरे को 2-3 चीजें बड़ी मजेदार लगती है, वो एक ये है कि हमने भाषा के साथ भी बहुत खेल हुआ है इसमें। लेकिन कुछ लोग, बहुत सारे लोग उर्दू पोइट्री की तरफ थे, बहुत कम लोगों ने हिंदी कविता की तरफ को हिंदी सिनेमा में लाया। प्रदीप साहब एक थे, पंडित नरेंद्र शर्मा एक थे, पंडित भरत व्यास एक थे, गोपाल दास नीरज की कुछ कविताएं हैं जो जो हिंदी की तरफ आती हैं। प्राध्यापक वसंत देव थे जिन्होंने उत्सव जैसी फिल्मों के गाने लिखे। योगेश एक थे। फिर मेरे समय में वरुण ग्रोवर एक है, मैं हूँ, जो थोड़े हिंदी कविता से हम लोग प्रभावित है। तो मतलब जैसे एक प्रेम गीत, मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से, तो मोह मोह ये शब्द ही इतना हिंदी है। या मन कस्तूरी रे जग दस्तूरी रे, इस तरह की बात करने वाला, और एक बहुत ऊंची फिलॉसफी लेके आने वाला राइटर आज भी हमारे हमारे वक्त में हो रहा है। तो बहुत सारी चीजें हैं, जो अलग अलग बातें हैं, उसमें से चीजें बदलती गई, और बदलते वक्त के साथ बहुत सारे लोग बदलते गए। जावेद साहब बदले, इम्तियाज अली का आना हुआ, राजकुमार हिरानी का आना हुआ, उनके आने से भी गानों का टेक्सचर बदला है बहुत सारा। रॉक ऑन नाम की फिल्म में जावेद साहब ने भी लिखने की कोशिश की है, एक बहुत ही पॉप गाने की तरह से, कि तेरी लॉन्ड्री का बिल, मेरी आधी पड़ी नॉवल, वो गाना है। या लेकिन एक और दौर आया, जो एक और फिल्म है जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगा, जिसने अगेन एक गाने के पूरे नए सिरे से चीजों को लाया और फिर से उस आदमी की बात करनी शुरू की जिसको हम भूल रहे थे। उस फिल्म का नाम है गली बॉय। और उसमें पहली बार हमने वो इंडिजीनियस, जो वहां पे धारावी की गलियों में पैदा हुआ, और सिर्फ धारावी की नहीं, देश भर की झोपड़पट्टियों में जो हिप हॉप का असर हुआ, और वहां पे जो लड़के अपने से अपनी व्यथा को लेके काम करने लगे, उसको एक फिल्म में लाने का प्रयास किया। लोगों ने अलग अलग तरह की बातें की। 2 अलग अलग तरीके के इमोशंस थे एक साल में, उस साल में। बहुत खूबसूरत गाना मनोज मुंतशिर का, तेरी मिट्टी में मिल जावा, वो भी आया था, और गली बॉय का भी गाना आया था, और उसके बीच में काफी बातें हुई कि यार ये बेटर है या ये बेटर है। मुझे लगता है दोनों ही बेटर है। तो लेकिन गली बॉय में मतलब उसमें ऐसी इमेजेस और ऐसे शब्द आए थे कि चल वो पटरी पे गिरगिट पकड़ेंगे। पटरी पे गिरगिट कौन पकड़ता है? झोपड़पट्टी का बच्चा पकड़ता है। हमको क्या पता पटरी पे गिरगिट होता भी है। तो और या दुनिया भर का शोर मेरी गली में, इसकी आवाज मेरी गली में, ये राज मेरी गली में, मतलब प्रेयर 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 आरती नमाज मेरी गली में। ये मेरे को लाइन इतनी, तो वो एक छोटी सी धारावी की गली, इसमें प्रेयर आरती नमाज सब कुछ हो रहा है। तो ये बात जो मुझे बहुत 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 इंपॉर्टेंट लगती है, मैं इसको एंड करता हूं। नवरंग फिल्म में भरत व्यास जी ने एक छोटा सा कवित्त लिखा था, जिसको रैप ही बोला जा सकता है। तो मैंने ऐसे सोचा था कि वो ये रैप पूरा पढ़ूंगा, मैं पढ़ा नहीं मैंने, लेकिन ये रैप मैं पढ़ देता हूं। ये भी कवित्त है, रैप जैसा ही है, लेकिन एक लिरिसिस्ट के ऊपर लिखी हुई एक बात है। कवि राजा कविता के मत अब कान मरोड़ो, कवि राजा कविता के मत अब कान मरोड़ो, धंधे की कुछ बात करो, कुछ पैसे जोड़ो।
शेर शायरी कविराजा ना काम आएगी, कविता की पोथी को दीमक खा जाएगी। भाव चढ़ रहे, अनाज हो रहा महंगा दिन दिन, भूखे मरोगे रात कटेगी तारे गिन गिन। इसलिए कहता हूं भैया ये सब छोड़ो, धंधे की कुछ बात करो, कुछ पैसे जोड़ो। छोड़ो कलम, चलाओ अब कविता की चाकी। घर की रोकड़ देखो कितने पैसे बाकी। कितना घर में है, कितना गरम मसाला, कितने पापड़, बड़ी मंगोड़ी मिर्च मसाला, कितना नून तेल मिर्ची हल्दी और कितना धनिया। कवि राजा चुपके से तुम बन जाओ बनिया। तो ये कवि राजा को ये सलाह दी गई और कवि राजा को कहा गया कि थोड़ा सा व्यवहार सीख लो। हिंदी सिनेमा के लिरिसिस्ट ने व्यवहार सीख लिया है, अब हमारे क्रेडिट के लिए भी लड़ते हैं। और हमारे ही किसी आदमी ने हमारे जावेद साहब ने हमारे लॉज को भी अमेंड किया है। तो वी आर इन अ गुड स्पेस एंड थैंक यू सो मच फॉर। हेलो, नमस्कार। हॉलीवुड में जैसे सिगरेट, टोबैको, ये हम्फ्री बोगार्ट जैसे लोग प्रमोट कर रहे थे, लकी स्ट्राइक प्रोडक्ट्स प्रमोट हो रहे थे। हिंदुस्तान में गांधी जी के ज़माने में हिंदी शायरों ने, कवियों ने जैसी शराब प्रमोट की है कि थोड़ा अनयूजुअल लगता है। जैसे कि देवानंद साहब आप दिखते सिगरेट फेंक देते बिकॉज ही हेटेड स्मोकिंग। सिगरेट, शराब का वैसे होता नहीं है। तो ऐसा कुछ डील था क्या, आपको कोई मालूम है क्या? नहीं, मुझे तो कुछ नहीं मालूम सर। और शराब का तो क्या डील होगा, शराब तो शायरों ने पहले से प्रमोट करके रखी हुई है बहुत जमाने से। मैं कदा और पीने द गालिब, तो शराब के साथ ऐसा कोई डील तो मुझे नहीं लगता होगा। लेकिन हाँ, लेकिन सिगरेट को भी प्रमोट नहीं किया गया, उसको प्रमोट करना नहीं कहूंगा, लेकिन वो जिंदगी का हिस्सा है तो आती है। हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। Yeah, just two questions because we have to back up. आप निदा फाजली का नाम लिए थे, but little more about him, please. I don't really, I'm not a scholar that way, but I can tell you कि निदा फाजली, सुधीर मिश्रा, हाँ, मेरे तेरे नाम नए हैं, एक दर्द पुराना है, जीवन क्या है, तेज हवा में दीप जलाना है, सरफरोज में एक गाना है। सरफरोज में गाना है। हाँ, ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अब ये मुक्त हो रहे हैं हम। सिनेमा से मुक्त होना जरूरी है संगीत का, ताकि सिनेमा का संगीत एनरिच हो, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि होता क्या है कि जैसे हमने कहा कि सिनेमा सब कुछ ले लेता है, उसके उद्गम से ही ले लेता है, तो उद्गम पे कुछ बचता नहीं है। तो फोक सॉन्ग नहीं होगा तो फोक से इंस्पायर्ड सॉन्ग कैसे होगा, या कोई इंडी, तो सिनेमा से परे गाना जो उसके अपने आप में गाने के स्वरूप में आए, उसकी कविता हो, उसका संगीत हो, और वो बाहर आए और उसको फिर सिनेमा उसको लेना हो तो ले, या उससे कुछ सीखे, तो वैसा होने की संभावना बढ़ी है ये स्ट्रीमिंग से। ये स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स आने के बाद में, और बहुत सारे लोग, मतलब लगभग 10,000 गाने रोज नए रिलीज हो रहे स्ट्रीम होने के लिए, विच इज अ ग्रेट थिंग आई थिंक। उसमें से कुछ एकदम बहुत सुने भी जाते हैं और वो फिर वो लाइसेंस हो जाते, सिनेमा में आ जाते। तो ये अच्छी बात है। मैंने भी उस सिलसिले में कुछ गाने रिलीज किए हैं। और अरे सर, हर महीने एक आएगा हर महीने एक आएगा। अच्छा, टाइम इज वेरी शॉर्ट ना सर। एकच प्रश्न मला विचारायचा आहे. नमस्कार स्वानंदजी. नमस्कार, माझं नाव पद्मश्री कदम. मला एक प्रश्न विचारायचा आहे. तुम्ही आत्ता जे ट्रान्झिशन सांगितली जुन्यापासून आत्तापर्यंतची, आणि लिरिक्समधले जे बदल सांगितले की वेळेबरोबर जसं बदलला हिरो तसं तुमचे लिरिक्स बदलले, पण तरीसुद्धा त्याच्यात काव्य होतं, त्याच्यात गेयता होती, त्याच्यात यमकं होती. पण काही गाणी अशी आली की तुरुरुरु तुरुरुरु तेरा मेरा प्यार शुरू, किंवा तू 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 तारा. तेव्हा पण होती लारी लप्प लारी लप्प लारी लप्प दा, आडे टप्पा आडे टप्पा. सिनेमा खेळतो या सगळ्या गोष्टी. पण जेव्हा आपण म्हणतो की जुनी गाणी लक्षात राहतात, आपण ही गोष्ट पुढच्या पोरांना विचारू ना की त्यांना कुठली लक्षात राहील. अच्छा, आपल्याला नाही माहिती ना, आपण आजच्या गाण्यांना का कमी लेखतो. आणि कमी नहीं लेखते, नहीं, पण short memory झाली. 2000 गाने बने थे उस टाइम पे, उसमें से 20 हम याद रखते हैं. वैसे ही आज भी 2000 गाने बने, उसमें से 20 याद रहेंगे.
हम वही गाने गाते हैं जो हमको याद रहते हैं, लेकिन जो हम भूल गए वो गाने जो बने थे, हमको नहीं पता वो गाने। तो मुझे वही मानना है कि वो टाइम का टेस्ट टाइम ही करेगा, हम नहीं कर सकते। लेकिन आप जो कह रही हैं उसके साथ में मैं इसलिए ये कहता हूं कि CAT कैट कैट मैंने बिल्ली दिल जो तेरे ये यार गे के गेले जरा टिम्बकटू, अब इसको हम कहें कि इसमें गेयता थी और हम इसको कहेंगे कि इसमें नहीं थी, तो ये मुझे थोड़ा सा मंजूर नहीं है। पर हाँ, इरिस्पॉन्सिबल लिरिक्स is a different thing, which we can also debate in a different way. पर अगर फिर भी moral judgment देना हमारा काम नहीं, sorry. नहीं, मैं भी स्वेतलाना को पूछने दो सर प्लीज। I just want to say thank you because poets, lyricists, गाने, म्यूजिक नहीं होगा तो जिंदगी इमेजिन करना नामुमकिन है। खुशी हो, दुख हो, कोई भी चीज़, अकेले ट्रैवल करना हो, अकेले रहना हो घर में बिना म्यूजिक के। और ख़ास तौर पे हाल फिलहाल में जैसे हम देख रहे हैं बहुत सारी पुरानी फिल्में रिलीज हो रही हैं, एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स व्हेन आई रिविजिट दोज फिल्म्स आई रियलाइज कि सिर्फ गाने हैं जो एक्चुअली नॉस्टैल्जिया जो उस फिल्म का है वो सिर्फ गानों के कारण है, जो पसंद है वो सिर्फ गाने हैं, फिल्म खुद से उतनी खास नहीं है। सो थैंक यू। नहीं, एक कंक्लूड कर लेते हैं कि मैंने परसों जब इनसे मैंने बात की तो मैंने बोला कि आजकल के जो बच्चे हैं वो भी पुराने गाने गाते, जब उनके माँ बाप का भी जन्म नहीं हुआ था, वो सारे गाने आजकल के बच्चे 6 साल के बच्चे गाते। तो इन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया मुझे, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। इवन आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द होल म्यूजिक, द पार्ट ऑफ द इंडियन सिनेमा। तो उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं था, तभी के पे कुछ बुरे गाने होते थे, अच्छे होते थे, बुरे भी होते थे। वो बच्चे ये गाने इसलिए गाते हैं क्योंकि उनके मम्मी पापा जो व्यूअर्स है वो गाने सुनते हैं। एग्जैक्ट। तो हाँ, एनी एस्पेक्ट ऑफ इंडियन सिनेमा, हम अगर किसी के साथ बात करते हैं, लिखते हैं, कुछ भी करते हैं, वो ख़त्म होने वाली बात ही नहीं, वो चलती रहेगी। इतना बड़ा वास्ट है इंडियन फिल्म म्यूज़िक, इतनी सारी बातें कर सकते हैं। तो वो तो उन्होंने जिस तरह से उन्होंने एक सूत्र पकड़ा कि मैं लेके वो पहले से अभी तक हाउ द होल लिरिक राइटिंग इज चेंज विद द टाइम, एंड आई रियली एग्री विथ हिम। बहुत अच्छी तरह से उन्होंने बताया। थैंक यू सो मच आनंद। एंड यस, चलो चलते तो वही गाना गा देता हूँ जो भजन बन चुका है लगभग। बावरामन देखने चला एक सपना, बावरे से मन की देखो बावरी है बातें, बावरी सी धड़कने हैं, बावरी है सांसे, बावरी सी करवटों से निंदिया दूर भागे, बावरे से नैन चाहे, बावरे झरोखों से, बावरे नजारों को तकना, बावरा मन देखने